Hello friends, students and graduates. You are welcome सभी छात्रों अभिभावकों का इस चैनल में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज तुम्हारे लिए हम कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक का मैटर लाए हैं पढ़ाने के लिए। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ख़ास तौर पर यूपी के छात्र इस बात को समझ लें कि आपका जो 2022 में एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरह से NCERT बेस्ड होगा। आपकी पुस्तक चेंज हो गई है, जितने भी लेसन्स हैं वो बदल गए हैं। अब आपकी पुस्तक जो आई है इसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के माध्यम से आपको प्रोज और पोइट्री पढ़ाई जाएगी तथा दूसरी बुक जो होगी वो विस्टाज होगी। विस्टाज में आपको सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन्स पढ़ने होंगे। तो आपको जो पुराना सिलेबस है उसको नहीं पढ़ना है, उससे आपको लाभ नहीं होना है। अब आपको पढ़ना है तो रिवाइज्ड बुक से पढ़ना है, बेस्ड ऑन NCERT हो, उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो आज हम इसी क्रम में आप सभी को कक्षा 12 का जो कोर्स है, फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन आपकी फ्लेमिंगो का, आपकी टेक्स्ट बुक का, प्रोज का, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन, जो अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। चलिए इस लेसन के सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। अल्फोंस डॉडेट was a French novelist and short story writer. He was born at Nimes in France on 13 May 1840. Vincent Daudet was his father, who was a silk manufacturer. They were middle-class people who loved their motherland with great patriotic enthusiasm. Alphonse was married to Julia, and this couple had 3 children, Wislan, Lucien, and Ethne. Leon and Lucien proved to be excellent writers. Alphonse spent his boyhood days in Lyon, but he had depressing school days. Therefore, he had to Lyon in 1856. Afterwards, he became a school teacher at Alès in South France. In 1857, he went to Paris to live with his elder brother, Ernest Daudet, who had adopted the profession of journalism for his family's livelihood. There, Alphonse got inspiration from his journalist brother and started writing articles and poems. His poems became popular and were collected in a volume, Les Amours, in 1858. Now, we will try to know who is who of this lesson. The first character of this lesson is French. Who is French? He is the narrator of the lesson and a student in a school.
The second character is M. Hamel. She is a teacher of the French language and has two patriotic feelings. Afterwards, patriotic feelings towards his motherland, France. Village people, they are the people from a nearby village who are sitting quietly on the back benches like students to hear M. Hamel in a gathering. Now, we should know, before studying this lesson, before studying the text about the lesson, we should know. The last lesson is an inspiring and exciting story full of patriotic fervor. The narrator of the story is a student of M. Hamel, who teaches French at a school in the territory of Alsace-Lorraine, which has been occupied by the Prussian forces. In the story, the teacher gives the lesson that let our object be our country, our whole country, and nothing but our country. For him, French is the most beautiful language in the world. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So it is their moral duty that they must guard it among them and never forget it. What do you understand by the pronoun it? It means the language of any country, of that country. They must guard it among them and never forget it. At the very end of his lecture in the class, M. Hamel writes on the blackboard thus: Vive France, which means long live France. ओके, सभी छात्रों को द लास्ट लेसन के बारे में बता दिया गया है, आपको बताया गया है कि इसमें जो फ्रेंच है वो इस कहानी का नरेटर है और किसी विद्यालय में विद्यार्थी है। मिस्टर एम जो आए हैं, एम हैमल, वो इस विद्यालय में टीचर हैं और वो उसका शिष्य है। विलेज पीपल जो दिखाया गया है, यहाँ के जो भी विलेज पीपल दिखाए गए हैं वो नियर बाई विलेज के लोग हैं। इसमें कहानी में बताया गया है कि जो विद्यार्थी तुम्हारा फ्रेंच है वो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट में एल्सेस-लॉरेन जो विद्यार्थी के रूप में पढ़ता है और उस क्षेत्र को प्रेशियन फोर्सेस ने ऑक्युपाई कर लिया है। इधर जो एम हैमल है वो इस बात को बताते हैं कि किसी भी देश की भाषा वहाँ के लिए एक तरह से की का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रिजन में है, अगर उसको अपनी भाषा तैयार है तो भाषा तैयार होने से वो अपने आप को ज़्यादा स्लेवरी या एक कल्पित के रूप में नहीं मानता है, सक्षम नहीं मानता है। लेखक कहता है कि हम कहीं भी हों, किसी भी स्थान में हों, देश या विदेश में हों, लेकिन हमको अपनी भाषा
पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि जो एम हेमल हैं उन्होंने अपनी भाषा को कितना महत्व दिया है। आखिरी में जब अपने स्पीच को बंद करते हैं तो यही कहते हैं, लिव लॉन्ग फ्रांस, अर्थात फ्रांस हमारा दीर्घजीवी हो, यहाँ की भाषा हमारी चलती रहे, जो दुनिया की सबसे सुपर भाषा है इस रूप में। तो बच्चों, फर्स्ट लेसन जो द लास्ट लेसन के नाम से प्रचलित है, जो आया है तुम्हारे पुस्तक बुक में, इसको आपके छात्र के विषय में बता दिया गया है। इस स्टोरी में जो नरेटर है या कौन कौन पात्र हैं उनके विषय में बता दिया गया है। अब अगले ऑडियो में या वीडियो में आपको टेक्स्ट पढ़ाई जाएगी। आपको अपना ये चैनल सब्सक्राइब करने से नहीं भूलना है। अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ग्रामर की भी जानकारियाँ दी जाएंगी। ठीक है, ओके।